ہم جب تک اپنے آپ سے، اپنے اندر سے، اپنے آپ کا، اپنی ذات کا، اپنی شخصیت کا، اپنے تمام تر عزیز و اقارب کا، اپنے محلے داروں کا، اپنے شہریوں کا، جب تک ہم اب تک سب لوگ مل کر اپنے علاقے کا احتساب نہیں کر لیتے ہیں، ہم ملک پاکستان سے احتساب مانگنے کا تمام تر ذمہ داریوں کو آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آپ اپنے احتساب کے عمل میں اپنے گھر سے مکمل طور پر آپ کا آڈٹ ہو چکا ہے، تو اس کے بعد اپنے آپ کو امپلیمنٹ کیجئے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے قریبی رشتہ داروں میں، اس کے بعد اپنے دور کے رشتہ داروں میں۔ اگر ہمیں واقعی صحیح معنوں میں اپنے ملک پاکستان کی ترقی کرنا مقصود ہے تو ہمیں ایک دوسرے کو غداری کے فتووں سے پاک کرنا بہت ضروری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد شاہد مرزا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خواتین و حضرات، اگر ہمیں واقعی صحیح معنوں میں اپنے ملک پاکستان کی ترقی کرنا مقصود ہے تو ہمیں ایک دوسرے کو غداری کے فتووں سے پاک کرنا بہت ضروری ہوگا۔ ہمیں سب سے پہلے خود کا احتساب کرنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ سے ہی احتساب کا آغاز کرنا ہوگا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بحیثیت ایک انسان، اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں اور اس وقت آپ گھر میں مقیم ہیں، تو کیا آپ اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جو ان کے تمام تر حقوق ہیں کیا وہ پورے کر رہے ہیں؟ جب آپ اپنا احتساب کر لیتے ہیں تو اسی طرح اگر شادی شدہ فرد ہیں تو کیا وہ اپنے بچوں کی جو ضروریات زندگی ہیں اور اپنے گھر والوں کے جتنے بھی ان کے ضروری کام ہیں، کیا وہ ان تمام تر ذمہ داریوں کو اور ساتھ میں اپنے گھر والے، اپنے والدین کی ذمہ داریوں کو کیا احسن طریقے سے نبھا رہے ہیں؟ یہ سب سے پہلے اپنا احتساب کرنا ضروری ہے۔ جب آپ اپنی فیملی کا احتساب کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جب آپ کا احتساب مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اپنی ہی فیملی سے جڑے اپنے دوسرے لوگوں کے ساتھ خود کا احتساب کیجئے۔ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ اپنا دیا گیا ٹائم، اپنے ماں باپ کو اپنا دیا گیا وقت، اس کے بعد جب آپ ان تمام تر چیزوں کو آپ ٹیلی کر لیتے ہیں اور آپ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے کس کو کتنا ٹائم دیا، کس کے ساتھ آپ نے کتنی حد تک آپ نے اپنے فرائض کی انجام دہی سے آپ بالکل پوری طرح سے آپ واقف ہو گئے، جب آپ ان تمام تر ذمہ داریوں کو آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آپ اپنے احتساب کے عمل میں اپنے گھر سے مکمل طور پر آپ کا آڈٹ ہو چکا ہے، تو اس کے بعد اپنے آپ کو امپلیمنٹ کیجئے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے قریبی رشتہ داروں میں، اس کے بعد اپنے دور کے رشتہ داروں میں۔ جب آپ اس سے پہلے اس وقت جب آپ یہ والا عمل دہرا رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ آپ کے ارد گرد کے جو قریبی رشتہ دار ہیں کیا وہ سیلاب متاثرین سے زیادہ تر کسی قسم پرسی کی زندگی تو نہیں گزار رہے ہیں؟ کیا وہ کسی اور طرح سے کسی برے حالات کی طرف سے تو نہیں جا رہے ہیں؟ کیا ان کو آپ کی ضرورت تو تھی لیکن آپ نے ان کو وقت نہیں دیا اور آپ ان کی ضرورت پوری کر کے آپ ان کو ایک اچھی زندگی دے سکتے تھے؟ جب آپ کا یہ والا احتساب بھی مکمل ہو جاتا ہے کہ آپ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کا بھی ان کا حقوق ان کے پورے کیے ہیں، اس کے بعد جو آپ کا اگلا لائحہ عمل آ جاتا ہے وہ ہے آپ کا ٹاؤن، آپ کا محلہ۔ آپ اپنے محلے میں ایسے لوگوں کو دیکھیں، تلاش کریں جن کو آپ کی صلاحیتوں کا انتظار تھا، جو آپ کی وجہ سے ایک اچھی راہ کی طرف جا سکتے تھے، جو مشکلات سے بچ سکتے تھے، جن کو آپ اگر ان کی رہنمائی کرتے، اگر ان کو صحیح راستے پر لے کر آتے تو ان کے گھر میں ایک اچھی طریقے سے ان کی خوشحالی آ سکتی تھی۔ یا اگر آپ خود کو سمجھتے ہیں کہ آپ کی آواز اٹھانے سے اگر کوئی بات بن سکتی ہے تو آپ ان کی آواز بن کر ان کو ایک بہتر زندگی کی طرف لے کر جانے کی کوشش کیجیے۔ آپ کے محلے میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جس گھر میں شاید شام کی ایک سفید چادر اوڑھے یا سفید پوشی میں اگر وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو ان کو کسی کو نہیں پتا ہے، تو آپ کو ان تک بھی پہنچنا ہوگا، آپ کو ان کو بھی دیکھنا ہوگا۔ جب آپ کا احتساب اپنے کمرے سے شروع ہو کر اپنی فیملی سے مکمل کر کے اپنے رشتہ داروں سے ہو کر محلے تک بھی اپنا احتساب کر لیتے ہیں کہ آپ نے اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھا لیا ہے، تو پھر آپ اپنے شہر کی طرف چلے جائیے۔ اپنے شہر کا اندر آپ جا کر اپنے ایسے لوگوں کو دیکھیے، ان کی آواز بنیے، ان کو دیکھیے کہ کن کو آپ کی ضرورت تھی، کون آپ کی صلاحیتوں سے جو آپ کے اندر چھپی ہوئی ہیں، جن کو آپ سوشل میڈیا کے اوپر استعمال کر کر غداری کے ٹیگز دے رہے ہیں، ان کو آپ کی ضرورت تھی۔ آپ نے ان کو جا کر جب آپ نے اپنی تمام تر صلاحیتوں سے بروئے کار لاتے ہوئے ان کو ایک اچھی زندگی کی طرف لے گئے، جب آپ نے لوگوں میں شعور اجاگر کر دیا، جب
आपने अपने अंदर की सलाहियतों को, अपनी तमाम तर खूबियों का इजहार आपने उन लोगों के अंदर मुंतकिल किया कि आप लोगों के अंदर शऊर आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हमने इस शहर की किस तरह से देखभाल करनी है। सफाई के इंतजामात को देखिए, हेल्थ के इंतजामात को देखिए, इन तमाम तर सूरत हाल का जब आप जायज़ा ले लेते हैं और आप म्यूनसिपल कमेटी के तमाम तर किए गए इक़दामात का जायज़ा ले लेते हैं, शहरों के अंदर नाजायज़ तजावज़ात को ख़त्म करने की तमाम तर जो कोशिशें की गई हैं या नहीं की गई हैं, उनका जायज़ा जब ले लेते हैं, जब म्यूनसिपल कमेटियों का आप एहतसाब कर लेते हैं और आपको लगता है कि आप उनमें कामयाब हो गए हैं, तो अब आप अपने इलाके के MPA का एहतसाब कीजिए, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असेंबली का एहतसाब कीजिए, उससे सवाल जवाब कीजिए। आप देखिए कि आपके इर्द गिर्द के जितने काम थे जो तरक्की याफ्ता काम होने चाहिए थे, जिसके लिए आपने उनको वोट देकर इन ऐवानों में भेजा था, क्या आपके वो सारे काम हो चुके हैं या नहीं हुए हैं? कि क्या सिर्फ उन्होंने ठेके जो कि पहले चलते थे उनमें 100 गुना इजाफा करके उन्होंने अपनी जेबें भरनी शुरू कर दी हैं, या उन्होंने कोई जगह टैक्स लगाकर अपने ही शहरों में गरीब आवाम का जुलूस निकालना शुरू कर दिया है, या उन्होंने कोई ऐसी किस्म की हरकत की हैं जिससे कि आम आदमी को बहुत ज्यादा उसके ऊपर इफेक्ट हुआ है? आपको ये तमाम तर चीजें बालाए ताक होकर देखनी है, बगैर किसी सियासी पार्टी की तरफ झुकाव रखते हुए आपको देखनी है। आपको देखना है कि कितने लोग उनके दर पे, उनके जो उनके डेरे हैं, उनके जो उन्होंने मुलाकात के जो जरिए बनाए हुए हैं, वहां पे गए अपने सवाल लेकर, अपनी शिकायत लेकर, और कितने लोगों की शिकायत का अजाला करवाया गया, या वहां पे बैठे PAs ने उनसे पैसे लेकर अपनी जेबें भर ली हैं। या आपको एहतसाब करना होगा कि जो उनके पर्सनल असिस्टेंट होते थे वो पहले क्या थे और अब कितनी वो जायदादों के मालिक बन गए या कितने अमीर हो गए। ये एहतसाब आपको ही करना है, किसी और ने नहीं करना है। जब आप अपने इलाके के मेंबर पार्लियामेंट असेंबली MPA का एहतसाब कर लेते हैं, तो उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाता है। आप अब इस काबिल हो चुके हैं कि आप अपने इलाके के मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली का भी एहतसाब कर सकें। अब आप उस तरफ आ जाइए, अब आप अपने MNA का एहतसाब कीजिए कि आपको हमने वोट देकर ईवानों में मुंतखब करके भेजा, आपने हमारी तर्जुमानी किस तरह से की, आपने हमारे इलाके के जितने भी मसाइल थे उनको कैसे जाकर उजागर किया। हुकामे बाला तक हमारी एक्सेस नहीं है, हमने आपको चुनकर मुंतखब करके वहां तक भेजा कि आप हमारी तर्जुमानी कर सकें। आप हमारी तर्जुमानी करने के किस हद तक जो है उसमें आप कामयाब हुए या नहीं हो सके। आपने हमारे इर्द गिर्द जितनी भी हमारे इलाके के जितने भी हमारे जो कनेक्टिव सिटी हैं, आपने उनके साथ हमारे रवाबत के लिए जो सड़कें थी उनको कितना अच्छा बनाने में अहम किरदार अदा किया। हमारे इलाके के जो गैस का इंतजाम है उसमें आपने किस हद तक कामयाब कोशिशें की हैं, कितनी ग्रांट्स आपने मंजूर करवाई और कहां कहां लगाई हैं। ये आपने जब एहतसाब अपने इलाके के MPA MNA से आप करने में कामयाब हो जाते हैं, अपने साथ उन्हीं नौजवानों की टीम लेकर आप उनके तमाम तर उनके इर्द गिर्द घेरा तंग कर उनसे तमाम सवालों के जवाब मांग लेते हैं। आप उनसे जाकर पूछ सकते हैं कि आपको इतनी ग्रांट्स मिली हैं और आपने ये कहां कहां लगाई और किस तरह से लगाई हैं। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अगर किसी मोहल्ले में सोलंग जो है वो अगर 40 लाख का या 30 लाख का लगा है तो उसकी कॉस्ट अगर 10 लाख आ सकती थी, तो सवाल कर सकते हैं कि 20 लाख किधर गया। अगर आप उनकी कानूनी चाराजोई नहीं कर सकते, अगर आप समझते हैं कि आप कानूनी चाराजोई नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम आप अपने दिमाग में ये शऊर तो ला सकते हैं कि आइंदा हमने इनको वोट नहीं देना है। ये वो एहतसाब का अमल है जो आपके कमरे से शुरू हुआ था, आपकी अपनी जात से शुरू हुआ था, आपके बहन भाइयों से शुरू हुआ था, आपके बच्चों से होता हुआ, आपके बहन भाइयों से होता हुआ, आपके वालिदैन से होता हुआ, रिश्तेदारों से होता हुआ, मोहल्ले की गलियों से होता हुआ, मोहल्लेदारों से होता हुआ, शहर के मुख्तलिफ दोस्त अहबाब क्लास फेलो से होता हुआ पूरे इलाके में फैला। पूरे इलाके में जब आपने अपना एहतसाब करने में कामयाब हो जाते हैं और जब आपको लगता है कि आप अब इस वक्त इस हद तक इस पोजीशन में हैं कि अब आप कौमी सतह पर ये सवाल करने के अहल हैं, तो उठाइए मोबाइल, उठाइए कलम, उठाइए वो तमाम तर चीज़ें, उठाइए सोशल मीडिया और जो भी जैसा भी सवाल करना चाहें कीजिए। लेकिन
आपको अपने इलाके के आपको काउंसलर का नहीं पता कि वो क्या कुछ कर रहा है, आपको अपने इलाके की यूनियंस का नहीं पता कि उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, आपको अपने इलाके के एमपीए के बारे में उसकी तमाम तरह हरकत व सकनात का आपको नहीं पता, आपको अपने इलाके के एमएनए के बारे में, उसकी ग्रांट्स के बारे में, उसके किए हुए काम के, उसकी जिम्मेदारियों के, उसकी क्या तर जिम्मेदारियां हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असेंबली की क्या जिम्मेदारियां हैं, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली की क्या तर जिम्मेदारियां हैं, आपको इन चीज़ों का पता ही नहीं होता। और आप उठकर सोशल मीडिया के ऊपर किसी को गद्दारी के टैग्स लगा देते हैं, किसी को आप पीडीएम की जमातों को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या किसी को भी एक दूसरे को आप बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, जो कि इंतहाई गलत इकदाम है। आप इस तरह से कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। आपने जब तक बैट पकड़ना नहीं आपको आ जाता तो आप क्रीज पर जाकर बैटिंग किस तरह करेंगे? जाहिर सी बात है, प्रैक्टिस, जब तक आप नेट प्रैक्टिस नहीं करते हैं, कोई भी बड़े से बड़ा कामयाब बिजनेसमैन, बड़े से बड़ा कामयाब बिजनेस स्पोर्ट्समैन, बड़े से बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप, कोई भी दुनिया में कोई भी काम उठाकर देख लें, इवन कि अगर आप स्पोर्ट्स की बात करते हैं, अगर आप कहते हैं कि किसी भी काम में अगर आप किसी भी खिलाड़ी को अगर मिसाल ले लेते हैं कि ये तो वर्ल्ड्स बेस्ट नंबर 1 है, तो वो भी नेट प्रैक्टिस करता है। अगर आप किसी बैट्समैन को क्रिकेट में ले लेते हैं, अगर आप कहते हैं कि दिस इज द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एंड द बेस्ट बैट्समैन, तो वो भी नेट में प्रैक्टिस करता है। तो हर कोई प्रैक्टिस तो करता है, प्रैक्टिस करने के बाद ही जो है वो फिर आगे जाकर वो तमाम तर चीज़ों को बरूए कार लाते हैं। तो ये प्रैक्टिस ही तो है। जब तक आप खुद नहीं करेंगे, अपने अंदर से नहीं करेंगे, अपने इलाके से नहीं करेंगे, तो फिर आप कौमी सतह पर कैसे कर सकते थे? जब आप अपने इलाके से ही नहीं करेंगे प्रैक्टिस शुरू, जब आप अपने इलाके से शुरू कर देंगे, जब आप अपने मोहल्ले से शुरू कर देंगे, घर से शुरू कर देंगे, शहर से शुरू कर देंगे, तो कौमी सतह पर जाकर भी आप इस एहतसाब के अमल को आगे बढ़ा सकते हैं। और ये आपका हक है। लेकिन अफसोस की बात है कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं इस वक्त हमारे मुल्क में, वो इंतहाई अफसोसनाक है। यहाँ पे इस वक्त सियासत खेली जा रही है। सलाब ज़दगान के लिए एक दो चक्कर लगाकर फिर दोबारा आकर सियासत के लिए तेज हुआ जाता है। यहाँ पे अपने केसेस से बचने के लिए जो मौजूदा हुकूमत है और जो साबका अपोजिशन थी, उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता रहा कि वो एनआरओ मांगने के लिए लॉन्ग मार्च या जलसे जुलूस कर रहे हैं। मौजूदा जो हुकूमत अब जो कि अपोजिशन में चली गई थी, जो अब मौजूदा हुकूमत है, जो साबका अपोजिशन थी वो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, अब वो इल्ज़ाम लगा रही है कि जो इस वक्त अपोजिशन, तो खैर वो अपोजिशन भी नहीं है, जाहिर सी बात है आप पीटीआई को अपोजिशन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 3 सूबों में तकरीबन इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है, केपीके में उनकी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में उनकी हुकूमत है। गो के सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक या कौमी सतह पर अगर बात कर ली जाए कि सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं है इमरान खान, तो वो इस वक्त जलसे जुलूस कर रहे हैं, तो उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो एनआरओ मांगने के लिए जलसे जुलूस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए और सियासतदानों को भी ये चीज़ें सोचनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हम बार बार एक ही बात करते जाएं कि सियासतदानों को, तो आपको इन सियासतदानों से लगाएगी तमाम तर तवक्कुआत को ख़त्म करना होगा। आपको इन सियासतदानों से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, ये बात आपको ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि आपको खुद ही शऊर लेके आना है, आपको अपने अंदर ही शऊर लेके आना है, आपको खुद का ही एहतसाब करना है। आप बस अपने इलाके का एहतसाब कर लीजिए, बाकी सारी काम बातें आप छोड़ दीजिए। जब आपने अपने इलाके का एहतसाब कर लिया तो आप ही की तरह हर शख्स ने अगर अपने अपने इलाके का एहतसाब कर लिया तो मुल्क तो खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा। हम जब तक अपने आप से, अपने अंदर से, अपने आप का, अपनी ज़ात का, अपनी शख्सियत का, अपने तमाम तर अजीज़ व कारब का, अपने मोहल्लेदारों का, अपने शहरियों का, जब तक हम अब तक सब लोग मिलकर अपने इलाके का एहतसाब नहीं कर लेते हैं, हम मुल्क पाकिस्तान से एहतसाब मांगने का हक नहीं रखते हैं। आज के इस प्रोग्राम में चूँकि ये लंबा हो रहा है, हम अगले अपने जो अपना व्लॉग होगा उसमें हम पॉलिटिकल बात करेंगे, लेकिन इसके लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।